your profession and your passion. बट मुझे ऐसा लगता है कि एवरी डे इज़ अ चॉइस, राइट? लाइक यू टेक दैट चॉइस. सपने देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हसल लगती है. आप सपने देखिए, आप एस्पिरेशन देखिए, कुछ भी कह लीजिए उसको. जब से हम मिले हैं मैंने आपको देखा है, लाइक हाउ यू बैलेंस इट. आई हैव माई ओन स्लिप अप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. आपके लिखने का जो तरीका है. मुझे किसी ने बस धक्का दे दिया था. What was that moment when you started telling stories? Super inspired by the main character's life, right? You should tag Kali quite. Everybody should watch that movie, yes. बहुत जल्दी ना थक जाते हैं, हार जाते हैं. गली बॉय भी मूवी देखो तो प्रोसेस एंजॉय कर रहा था. I listened to your story and then felt उसके लिए कहानियां लिखता था. पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में लाइक किसी ब्रांड के लिए करेंगे, किसी कॉर्पोरेट के लिए करेंगे, कुछ भी करेंगे, they would have their own request. वेलकम टू सपनों के कैनवस, a podcast where dreams, stories and emotions come alive. I am Sweetie and I'm Clinton. and we are going to have a very beautiful conversation with our wonderful guest जो कि बहुत ही खूबसूरत कहानीकार हैं और जिन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी से छोटे छोटे पल को चुराना बहुत बखूबी से आता है. We met our guest a year back at an event. It was one fleeting moment, and that moment has become a memory for us now. And if you go and listen to his stories, make you think like a little slow. Not in a way that you feel that it is frustrating, but in a way that it makes you feel your heartbeat. So he's one such voice, and a beautiful welcome, Abhay Mesh. Thank you guys. Thank you so much. Very excited to be here. Thanks so much, Abhay. How did the Bangalore trip treat you? Bangalore still सीख रहे हैं बैंगलोर को. Still learning the ways and working of Bangalore, but yeah, so far so good. थोड़ा वेदर से गला डाउन हो गया, but I think that's also the beauty of Bangalore. It's such a cold and pleasant and good weather कि बाहर से आने वाले बंदे का गला ही खराब हो जाता है. नहीं, but really working around the city, it has a very different charm. Every city in India has a different charm. I think Bangalore is the OG IT Silicon Valley of India. So really good to see गले में पट्टा डाल के सारे लोग, including myself, सारे लोग नौकरी करते हुए. So you touched upon a cozy capital of IT, right? So we all have that one moment where we decide what is that we do for like one is our profession and one is our passion. How is it to say it on both the sex, your profession and your passion? It's difficult, यार. I mean, but मुझे ऐसा लगता है कि every day is a choice, right? Like you take that choice. बहुत सारे लोग कहानी और पॉडकास्ट और इनकी जर्नी में मुझे मिले हैं जो अलग अलग किस्म का टैलेंट रखते हैं. They have very different, aspirations, and it's not just about finding an alternate source of income. They're genuinely passionate about it, and somebody just wants to play guitar. It's as simple as that. But the hustle of life is such कि वो नहीं मिल पाता टाइम. तो उसमें से टाइम निकालना क्या लिटरली चुराना पड़ता है आपको. और वो चॉइस होती है रोज़ की, आई थिंक कि यार आज यहाँ जाएंगे कि यहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे, फिर ये करेंगे. एंड वो भी अपने आप में एक हसल है, उसमें अपने आप में एक फ़न है. तो दो नाव की सवारी जिसे हिंदी में कहते हैं, मुश्किल होती है पर बड़ी एडवेंचरस होती है. आई रेड इट समवेयर विच इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, बट इट आई think explains it very well, the feeling. It's terrifyingly exciting, right? So आपको हमेशा ऐसा लगता है कि यार बॉस को पता ना चल जाए हम ये कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम आपको सोशल मीडिया पे डालना भी है क्योंकि आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं. So somewhere in the middle you try to draw the balance and be a little strategic about it. Sometimes दिमाग की सुनो, sometimes दिल की सुनो. तो होता है कई बार आपको चीज़ें बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं. Yeah, it's a lot about कंट्रोलिंग योर इंस्टिंक्ट्स. अगर आप ऑफिस से झूठ बोल के गए हैं, कि नॉट टू से कि मैं झूठ बोलता हूँ, पर अगर आप मान लो ऑफिस से चुरा के 2 पल निकाल के किसी इवेंट में गाना बजाने या गाने या अपना पैशन जीने के लिए गए थे, तो अगर आप उसी टाइम पे स्टोरी डाल देंगे और आपका बॉस भी आपको फॉलो करता है तो आप फंस जाएंगे. तो हैव टू बी लिटिल स्ट्रेटेजिक अबाउट इट, लिटिल पेशेंट अबाउट इट. इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग दैट बैलेंस एंड देयर इज़ अ डिफरेंट फन इन फाइंडिंग दैट बैलेंस. वो बहुत कम लोग जीते हैं पर उसकी अपनी एक जर्नी है. तो आई वुड से मज़ा तो आता है. हाँ, दोनों नाव की सवारी में होते हो तो वो हिलती भी ज़्यादा है, बर्नआउट भी ज़्यादा होता है, पर आई थिंक इट्स ऑल अबाउट हसल ना. तो या तो एक नाव की सवारी में बैठ के आप परेशान हो जाओ, या 2 में थोड़ा आप
हिल लो, the choice is yours. It's always a choice, right? Yeah. Weekend hobbies to Monday Mondays. That's Yeah, absolutely correct. कुछ नहीं तो सी, मेरा कहने का मतलब है आई इट्स नॉट लाइक कि मंडे टू फ्राइडे ऑल्सो आई एम फुल्ली इनटू दिस. ऑफ कोर्स आई हैव अ डे जॉब एज ऑफ नाउ एटलीस्ट, सो आई हैव टू बी aware that I have to be responsible about it. So I call it as a responsible living, right? Like ये आपकी choice है कि आप जॉब के साथ करना चाहते हैं, आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं करा है. So if you decided to pursue your passion with your job, it's your responsibility to make sure that neither of them get affected. And if that requires you to step up in your job to make sure that काम एडवांस में हो जाए, अच्छे से प्लानिंग हो, कभी आपको डांट भी पड़ेगी तो आपको सहना पड़ेगा. ज़िंदगी है भाई, आप ऐसे अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, राइट? सो एवरीथिंग हैज़ टू गो हैंड इन हैंड. आपका पैशन है, आपको करना है, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, किसी ने बोला नहीं है करने को. और एक बात तो ये मान के चलिए कि यार जो पैसे दे रहा है ना, वो आपको नचा सकता है, चाहे वो नौकरी हो. कल आप अपने पैशन में भी जाएंगे, अगर कि कोई शो करेंगे, किसी ब्रांड के लिए करेंगे, किसी कॉर्पोरेट के लिए करेंगे, कुछ भी करेंगे, दे वुड हैव देयर ओन रिक्वेस्ट, राइट? कि साहब ऐसे करिए, हमारे लोगों को ये पसंद है, वो है. तो यू कांट बी नाइव, आप बचपना नहीं रख सकते इन सब चीज़ों में, राइट? कि इट हैज़ टू गो इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर इफ़ यू आर परस्यूइंग बोथ वेज. और अगर नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए, आप एक नाव पकड़ लीजिए. सपने वर्सेस एवरीवन एक बहुत बेहतरीन वेब सीरीज़ है जो मैं रेकमेंड करता हूँ लोगों को कि वो लोगों को देखनी चाहिए, बिकॉज उसमें से एक किरदार है जिसकी एग्जैक्टली यही कहानी है. एंड इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग द टू. part of balancing is what Devi art response. सो बेसिकली लाइक सपने देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जो हसल लगती है, एक्चुअली दैट इज़ समथिंग विच एक्चुअली हेल्प अस पेंट आवर लाइफ. हाँ, एब्सोल्युटली. आई मीन सारा खेल एक्शन पे है यार, मतलब हर चीज़ में एक्शन है. आप सपने देखिए, आप एस्पिरेशन देखिए, कुछ भी कह लीजिए उसको, एस्पिरेशन, सपना, कुछ भी कह लीजिए. विदाउट एक्शन इवन द स्मार्टेस्ट ऑफ द गाय वुडंट प्रोसीड एनीवेयर इन लाइफ ना. तो किसी ने अगर कोई मुकाम हासिल किया है, जिसे समाज के हिसाब से वो एक मुकाम है जो हासिल किया जाना चाहिए या किए जाने पे उस पर वाहवाही है, तो उसके पीछे एक एक्शन इन्वॉल्व है. सिर्फ कोई बैठा हुआ नहीं था, सोच नहीं रहा था. एक्शन के बिना एवरीथिंग इज़ अ वेस्ट, आई फील. एंड आई हैव नोन यू लाइक जब से हम मिले हैं, मैंने आपको देखा है लाइक हाउ यू बैलेंसेस बोथ प्रोफेशनल एंड दिस क्रिएटिव वर्ल्ड एज वेल. सो काफ़ी बहुत ही अच्छे से आप उसको मैनेज करते हो. लाइक लास्ट टाइम भी जब हम मिले थे, यू वर जस्ट ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग एंड आई वाज लाइक, हाँ, दिस इज़ हाउ आई नीड टू मैनेज. आई हैव माई ओन स्लिप अप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट हाँ, वो जिद मेरी है कि कहानियाँ मैं लिखूँगा, कि मैं करूँगा. तो उसकी जो कीमत है कि चाहे मैं च्युइंगम की तरह दो एंड से खींचूँ, या शायद मेरे पास कभी दोस्तों के लिए टाइम ना हो, या कभी कभार शायद घर वालों के लिए टाइम ना हो, वो कीमत मुझे चुकानी है. कई बार अगर बॉस ने बोला है कि यार रात में रुक के काम होना चाहिए, तो ठीक है यार, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और वो भी करना है. तो ये सब आपको कीमत, मतलब इट्स ऑल अबाउट द प्राइस यू पे एंड द चॉइस यू मेक, दैट्स इट. तो आपने ऐसे बोला कि आपको कहानियाँ लिखना बहुत पसंद है, तो लाइक एवरीबडी नोज़ लाइक आपके लिखने का जो तरीका है, जो अंदाज़ है, आप जिस तरह से लिखते हैं, आई थिंक एवरीबडी नोज़ दैट. बट आई हैव ऑलवेज वंडर्ड लाइक व्हेन डिड यू फील दैट स्टोरी टेलिंग इजंट जस्ट फॉर द पेज बट फॉर द माइक? ऐसा कोई मोमेंट नहीं था. आई थिंक मुझे किसी ने बस धक्का दे दिया था कि कुछ सालों पहले तक तो मैं दो लोगों से खुल के बात नहीं कर पाता था. तो एक जर्नी रही जहाँ पे जब मुझे मौका मिला कि यार मैं अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकूँ, बेटर कर सकूँ, मैं वो मौका ले लेता था कि यार सीखना है कि कैसे बात करते हैं लोगों से. मतलब मैं ऐसा होता था कि मैं दो लोगों से अभी जिस सेटिंग में मैं उतना भी बात नहीं कर पाता था. तो बस एक ही मन में था कि यार आई नीड टू बी एबल टू हैव अ कन्वर्सेशन विद एनीबडी एंड एवरीबडी अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. मैं उस मुकाम तक कैसे पहुंचूं. तो मुझे जहाँ जो अपॉर्चुनिटी मिलती गई, जिससे मेरा डर कम होता गया और मैं भय से अभय की तरफ आता गया, मैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को लेता गया. तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं सोचा था कि ये कल कहाँ जाएगा, इसका कल क्या होगा, या मैं यहाँ आज तुम लोगों के साथ बैठा हूँगा. कुछ नहीं सोचा था. मैं उस मोमेंट में ही देख रहा था, किसी ने बोला कि यार आप आके ये करेंगे. मैंने कहा हाँ ठीक है, कर लेंगे. अब वो कैसे करेंगे पता नहीं. तो रात भर बैठ के रिहर्सल करी, बहुत कुछ किया.
तो देयर वाज नेवर अ स्पेसिफिक मोमेंट, आई थिंक इट हैपेंड ऑर्गेनिकली, धीरे 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 जहाँ कुछ दिखा, जहाँ लगा कि यार यहाँ दिल भी लग रहा है और हम शायद कुछ सीखेंगे भी ज़िंदगी के बारे में, अपने बारे में, तो बस वहाँ घुस गया। मैं लिटरली ऑर्गेनिकली ही आगे बढ़ा हूँ। मुझे आज भी नहीं पता कि कल कैसा दिखेगा, उतना कभी सोचा नहीं। तो कोई एक मोमेंट तो ऐसा नहीं है, बट अर्ली ऑन हाँ वो ऐसा लगा कि यार ये कुछ, मतलब मुझे बस फीलिंग ये आ रही थी कि यार ये ना कुछ अलग है लाइफ में, मेरी लाइफ में पहली बार हो रहा है। और मेरे आसपास जो लोग हैं वो ऐसी कुछ बातें कर नहीं रहे थे, अधिकतर लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे, सारे दोस्त मित्र यार, कोई MBA कर रहा था, तो नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स एंड आई वाज लाइक दिस इज़ अ न्यू वर्ल्ड, दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, राइट? लाइक आई कैन चूज टू बी हूसएवर आई वांट टू, कहानी लिखेंगे, कुछ करेंगे। तो बस वो एक्साइटमेंट के जोश में मैं आगे बढ़ता गया और बस आगे बढ़ते गए। That's beautiful. So that one moment was required to be right. Decide that this is it. What was that moment for you when you started telling stories? सो गली बॉय मूवी आई थी बैक इन आई थिंक 2019 समवेयर, एंड रात को देख रहा था मैं, ऐसे ही मैंने लगा दिया एंड आई वाज सुपर इंस्पायर्ड बाय द मेन कैरेक्टर्स लाइफ, राइट? एंड बट समथिंग इन मी moved a lot, not just by an inch, but I was, क्योंकि तब तक मैं ऑलरेडी कहानियों में ओपन माइक्स वगैरह कर रहा था, थोड़ा बहुत मैंने लिखाई पढ़ाई चालू करी थी, पब्लिक स्पीकिंग कर रहा था, तो थोड़ा आइडिया लग रहा था अपने बारे में। और उस टाइम आसपास के सारे लोग जो हैं वो मेरे दे वर डूइंग देयर MBAs या वो आगे करियर सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं। मैं कह रहा हूँ यार MBA तो समझ नहीं आ रहा कि करना है नहीं करना, बट आफ्टर वॉचिंग गली बॉय समथिंग हैपेंड इन मी। एंड रात को मुझे याद है 11-12 बजे पुणे की नदी के ऊपर एक बहुत पॉपुलर ब्रिज है जहाँ पे लोग अक्सर फैमिलीज़ लोग हैंग आउट करने आते हैं, और मैं वो अपनी बाइक लेके चला गया और मैं बस ऐसे ही देखता रहा। मैंने कहा यार क्या ही हो जाएगा, कहानियाँ लिखते हैं, एक स्टेप लेके देखते हैं, सारी एनर्जी डाल के देखते हैं, ओपन माइक्स करते हैं, बॉम्बे जाते हैं, पुणे जाते हैं, जहाँ मौका मिले वहाँ जाते हैं। रिग्रेट नहीं लेना लाइफ में कि यार ये नहीं किया। तो उस टाइम मुझे कहीं ना कहीं दैट मूवी इंस्पायर्ड मी टू हैव अ लाइफ विदाउट रिग्रेट, कि व्हाट मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे इज़ नॉट द बैंक बैलेंस, नॉट दिस थिंग, बट मैंने जिस तरह से मैं ज़िंदगी जीना चाह रहा था क्या मैं वो जिया। एज समवेयर उस मूवी ने मुझे धक्का दे दिया, एंड देन आई डिसाइडेड लिटरली ऑन दैट वन नाइट कि यार अब एक शॉट लेके देखेंगे, लेट्स क्लियर द एयर एंड लेट्स ट्राई टू मूव इन दैट डायरेक्शन एंड लेट्स सी कहाँ तक जाता है। गया कोई बात नहीं, नहीं गया कोई बात नहीं। Everybody should watch that movie, yes, and it's an inspiring movie in a lot many sense, right? Like different characters inspire you in different manners, so it's not just the main character of Ranveer जो inspire कर रहा था, but even the guy who failed in the journey, वो दोनों सेम, अगर मूवी का प्लॉट आपको याद हो तो वो दोनों रैप कंपटीशन में जाते हैं, तो हमारी टेंडेंसी होती है सिर्फ उसको देखना जो जीत गया कि अपना टाइम आ गया, पर जो पीछे रह गया, जो आई थिंक जो दूसरा एक्टर जो था जिसको देख के वो आगे बढ़ रहा था, तो हाँ, सो देयर इज अ लर्निंग ऑन फेलियर ऑल्सो, दैट समटाइम्स you might feel you are there but you may not be there also. So it's a very holistic, I would say, a very well done movie. I'm not a film critic or anything, पर वो मूवी मुझे हिट करी बहुत अलग अलग एंगल से। देन एक जो स्ट्रगल जो उस कैरेक्टर की थी, मैं भी एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ, मेरे पास कोई ऐसा फॉल बैक ऑप्शन या ये सब चीज़ें नहीं है, तो आई कुड फील दैट थिंग विद द कैरेक्टर कि यार इसको अपनी पढ़ाई भी करनी है, इसको घर भी देखना है, ही हैज़ नथिंग, एट द सेम टाइम ही इज़ समथिंग and he just wants to be something. So very much related to what I felt at that moment, and I continue to feel today that I am that person. I am that Murad, like वो character हूँ मैं, तो यार कोशिश करके देखते हैं ना एक बार क्या ही हो जाएगा। तो बस अगर मोमेंट पूछोगे तो शायद वही एक मोमेंट रहा था। आई थिंक सबको ये लेसन लेना चाहिए, बिकॉज इन क्रिएटिव फील्ड मैं देखती हूँ कि लोग बहुत जल्दी ना थक जाते हैं, हार जाते हैं, उन्हें लगता है यार कर रहे हैं अब कुछ हो नहीं रहा है, रोज़ ओपन माइक्स में जा रहे हैं पर कुछ हो नहीं रहा है, रोज़ कहानियाँ लिख रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, पर वो मोमेंट कब आएगा जब मुझे ये मिलेगा, जब मुझे वो मिलेगा। लोग अक्सर थक जा रहे हैं, तो आई थिंक दे शुड ऑल्सो लर्न फ्रॉम दिस कि नहीं, हमें बस आगे बढ़ना है, इट्स ऑल अबाउट अ जर्नी, डेस्टिनेशन तो जब मिलनी हो। हाँ, आप मेरे ख्याल से आप थकते तब हो या आप गिव अप तब करते हो जब आपने उसको किसी ROI या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से टाई किया हुआ है। हाँ, अगर आप प्रोसेस एंजॉय कर रहे हो, अगर आप गली बॉय भी मूवी देखो तो प्रोसेस एंजॉय कर रहा था, वो पहुंच गया धीरे धीरे, मतलब ऑफ कॉलेज से स्टार्ट करते करते वो लास्ट में हो गया, राइट?
बट उसने ये नहीं कहा था कि नहीं नहीं मुझे तो यही बनना है और मैं उसी करेक्ट. इट हैपेंड ऑर्गेनिकली फॉर हिम एंड एट एवरी मोमेंट ही वॉज रेडी. वो अपना रियाज करता गया, वो लिखता गया घर में बैठ के, वो सब कुछ करता गया. तो जैसे एक इंग्लिश में कहावत है, टाइम ऑफ पीस शुड बी यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉर. सो दैट स्टोरी डिफाइंस दैट ना, लाइक एवरी सिंगल डे ही वाज गाड़ी में बैठे बैठे वो कुछ रिहर्स कर रहा है. दैट्स द हसल. करेक्ट. इट्स नॉट जस्ट द आउटपुट. सो उसने अपने आप को आउटपुट से नहीं टैग किया. अगर आप कोई भी व्यक्ति से हमेशा उसको एक बेंचमार्क, एक आउटपुट से टैग करेगा अपने क्रिएटिव परस्यूट को, तो बहुत जल्दी गिव अप करने के चांस हैं. बिकॉज क्रिएटिव परस्यूट को बाहर आने में, रिकग्निशन होने में वक्त लगता है. और वो किसको कितना वक्त लगेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है. कोई कभी किसी की किस्मत अच्छी होती है, वो रातों रात वायरल हो जाते हैं. पर आप कई सारे वायरल स्टोरीज की भी कहानी देखेंगे तो दे हैव बीन मेकिंग दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आज वो सडनली सबकी नज़र में आ गया. और एक बहुत अच्छे पोएट हैं राकेश तिवारी, उनकी कहानियाँ, उनकी पोएम्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी लाइन कही थी कि जो चीज़ जितना बनने में वक्त लगाती है वो उतने ही लंबे वक्त तक आपको बनाए रखती है. करेक्ट. तो कहीं ना कहीं अगर आप इस फिलॉसफी से अलाइन होते हैं तो आप जर्नी ज़्यादा एंजॉय करिए. आउटकम से बार बार उसको रोज़ देखते रहेंगे तो कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा. पर अगर रोज़ आप ये देखेंगे यार आज मैंने एक पेंटिंग बना ली यार, और मैं सुबह थक के आया था ऑफिस से यार, या मैंने कहानी लिख ली यार, या बस रिकॉर्डिंग हो गई, या 2-4 कट्स मार के एडिट कर दिए. इफ़ यू गेट द सेटिस्फैक्शन इन द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, लाइफ इज मच मोर एंजॉयबल. तब वो क्रिएटिव परस्यूट का फायदा भी है. वरना एक तरह से 2 जॉब चला रहे हो आप. बिल्कुल. यहाँ एक सर पे बॉस बैठा है और यहाँ आपका सर ही आपका बॉस है. आपका दिमाग ही आपको जकड़ के रखा हुआ है कि नहीं यार ये तो किया ही नहीं मैंने. वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो फ़ायदा नहीं क्रिएटिव परस्यूट का, मज़ा नहीं आएगा. और इसलिए आप हर समय लाइक बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़कर छोटी छोटी चीज़ों पर, छोटे छोटे मोमेंट्स पर फोकस करते हैं. लाइक मैंने आपके बहुत सारे लाइक कहानियाँ सुनी हैं, पॉडकास्ट देखे हैं. तो लाइक यू स्पोक अबाउट वो छोटी सी चाय की चुस्की या पुरानी डायरी के वो पन्ने, फिर कुछ हॉस्टल वाली खामोशी. तो लाइक हाउ डू यू चूज़ दोज मोमेंट्स, या फिर मैं ये पूछूं कि वो आपको चुनते हैं? आई थिंक वो मुझे ही चुनता है शायद. पता नहीं यार, वो आई थिंक जैसे जैसे इस प्रोसेस में मैं आगे बढ़ा, कहानियाँ मुझे खींचती गई. हाँ. और मैं जैसे जैसे कहानियाँ नरेट करता गया, लिखता गया, तो मैं दुनिया में कहानियाँ ढूंढने लगा. तो अगर मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ तो वहाँ पे मेटालिक एकदम सफ़ेद, लाल, सफ़ेद, काली, ग्रे, ऐसी कई सारी गाड़ियाँ हैं. 3 ही आपको रंग दिखेंगे, एक रेड, ग्रीन और येलो सिग्नल पे. बाकी सब बड़ा मंडेन सा लगता है. सडनली फिर कोई व्यक्ति है जो गुब्बारे बेच रहा है, और वो अतरंगी रंग के गुब्बारे बेचता हुआ आपके सामने से निकल जाता है क्योंकि वो रोड क्रॉस कर रहा था. तो अब ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर है, आपकी नज़रों पे, या शायद मेरी नज़रें पकड़ लेती हैं कि हर बंदा उन गाड़ियों में बैठ के परेशान तो है ही, पर मेरी नज़र अचानक से आए गुब्बारे पे चली जाती है कि इट्स लाइक अ हैप्पी मोमेंट इन अ वेरी मंडेन लाइफ. करेक्ट. राइट. तो कहीं ना कहीं कहानियाँ शायद मुझे ढूंढ लेती हैं, फिर उनको मैं थोड़ा दिमाग में रख के नोट बना के उनको फिर अपनी कहानियों में जब एक्सप्रेस करता हूँ तो उन चीज़ों को ले आता हूँ. तो पर समवेयर आई फील लाइक अ डिटेक्टिव ऑफ दीज स्मॉल थिंग्स. कुछ दिख जाता है कि यार ये कुछ अलग है. So you're a detective of small things, right? This almost feel like Sherlock Holmes story. You collect all those things and the eureka moment happens in it, and that becomes a story. So talking about stories, has that any story that gave you a promotion or something? आई थिंक तो मेरे दादाजी गुजरे थे कुछ साल पहले कोविड के टाइम पे. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे प्रोसेस करते हैं. स्टोरी टेलिंग या कहानियाँ लिखना या कहानियों को नरेट करना मेरे लिए बड़ा थेरेप्यूटिक प्रोसेस रहा है. लाइक आई डू इट बिकॉज मैं जब अपनी ज़िंदगी से इंस्पायर होकर कोई किस्सा निकालता हूँ, उसमें कहानी बनाता हूँ ताकि लोगों तक पहुँचे, तो वो प्रोसेस में मैं बहुत इमोशन से कनेक्ट करता हूँ, बहुत चीज़ें देखता हूँ. मुझे अपनी ज़िंदगी को एक अलग मायने, अलग नज़रिए से देखने का मौका मिलता है. पर वो कहानी जो मैंने तब लिखी थी, वो मैंने स्पेसिफिकली उस मोटिव से लिखी थी. आई वांटेड टू, बिकॉज मैंने पहली बार अपने फादर को रोते हुए देखा था. और मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मतलब एक घर में एक त्रासदी हुई है, एक हादसा हुआ है, वो ठीक है, पर मैंने अपने फादर को भी रोते हुए नहीं देखा था. तो वो कहानी मैं अपने लिए नहीं लिखना चाह रहा था. वो प्रोसेसिंग उस कहानी की ये नहीं थी कि मेरे दादाजी गुजर गए या मैंने किसी को खोया है.
कहानी का किस्सा ये था कि मैंने पहली बार अपने फादर को रोते हुए देखा है, जो मेरा हीरो है या जो जिनको मैं हमेशा एक ढाल की तरह, एक तलवार की तरह अलग अलग रूप में देखा है, बट उनको रोते हुए कभी नहीं देखा। तो इस चीज़ को मैं कैसे प्रोसेस करूँगा, क्योंकि पहली बार मैंने शायद अपने फादर को एक इंसान के रूप में देखा कि यार ये भी तो कितनी चीज़ों से गुजरता है ना। ही इज़ नॉट जस्ट द वन हु इज़ ऑलवेज हैप्पी, ही इज़ नॉट जस्ट द वन हु इज़ ऑलवेज फाइटिंग, बट अंदर के इमोशंस तो इनके भी हैं। तो वो कहानी मैंने लिखी थी उस टाइम पे, और वो उस कहानी से मुझे काफ़ी क्लोजर मिला था। वो कहानी फिर मैंने जब रिकॉर्ड हो गई, पूरी रेडी हो गई, तो मैंने पापा को भेजी थी। इनफैक्ट उनके साथ बैठ के ही मैंने वो कहानी, एक ईयरफोन उनके कान में, एक ईयरफोन मेरे कान में। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड बॉन्डिंग मोमेंट ऑल्सो फॉर मी, एंड started looking at my parents, family in general in a very different lens, more human lens, right? कि यार not just a relationship lens, कि यार ये पिताजी हैं, कि मतलब तो इंसान भी तो हैं यार, कितने इमोशंस उनके भी है ना। तो आई थिंक वो एक कहानी मैंने लिखी थी जो शायद बहुत क्लोजर मेरे को, मेरी दादी को, मेरे पेरेंट्स को बहुत अलग टाइप से सबको क्लोजर दी थी वो कहानी। Maybe that story might have touched many other lives. Have you receiving messages that people have listened to your story and they felt a little lighthearted, or you want to come in? नहीं, कई बार ऐसा हुआ है। मतलब मैं तो अपने उसके लिए कहानियाँ लिखता था, लेकिन मुझे बहुत मैं बहुत क्या कहते हैं, जब मुझे लोगों ने मैसेज किया कि यार ये कहानी सुन के मुझे मेरे नाना याद आ गए, या ये कहानी सुन के मुझे लगा कि यार मेरे खुद के पेरेंट्स के साथ रिलेशन सही नहीं है, इसको सही करना चाहिए, या ये कहानी सुन के मुझे मेरी स्ट्रगल याद आ गई, तो मुझे आए हैं ऐसे कई सारे मैसेजेस। और आई थिंक मुझे मैं कैसे बताऊँ, मैं मतलब बहुत ज़्यादा आभारी हूँ लोगों का कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5-7 मिनट मेरी कहानी को दिए, और उसके बाद 2 मिनट और दिए मुझे ढूंढने में सोशल मीडिया पे, और फिर मेरे को उन्होंने मैसेज किया, बताया कि उन्हें कैसा लगा। तो आई नेवर टेक दैट फॉर ग्रांटेड, लाइक आई ऑलवेज चेरिश दैट। और मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब मरते दम तक बैंक बैलेंस पता नहीं कितना होगा, पर ये एक पूंजी है जो मुझे बहुत, मैं खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि जो मैंने कुछ किया वो किसी के दिल तक पहुँचा और उसने मुझे याद रखा। हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है, और बहुत ही हम्बलिंग एहसास है। उससे एक और एहसास बैठता है कि आप जो कर रहे हैं, हम जो यहाँ बैठे हैं बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी तक पहुँच रहा है। हाँ. तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद यू, राइट? यू कैन नॉट, ये मेरा मानना है, आजकल चीज़ें बहुत अलग चलती हैं, पर मेरा ऐसा मानना है, मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल कह लीजिए आप इस मामले में हूँ, कि आपको भगवान ने आवाज़ दी है, प्लेटफॉर्म दिया है, एक काबिलियत दी है कि आप किसी की ज़िंदगी को छू सको। तो ये आपके ऊपर है कि आप उनको किस तरह से उस चीज़ में वो एक फ्लेवर देते हैं, एहसास देते हैं। तो मेरा बहुत स्टार्टिंग से क्लियर था कि मतलब, और जैसे जैसे मुझे पता चलने लगा कि लोग सुन रहे हैं और लिख रहे थे, तो आई बिकेम इवन मोर रिस्पॉन्सिबल, नॉट कॉशियस बट रिस्पॉन्सिबल ऑफ व्हाट आई एम राइटिंग, राइट? सो नेवर यूज बैड वर्ड्स। कहानी हमेशा उसका एक पॉजिटिव फील गुड फैक्टर रहेगा, कभी डार्क नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। इंसान कहानी सुन के कभी उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अरे यार ये क्या, मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप भले ही उल्लास से ना उछलें कि अब ये क्या हो गया, पर आप परेशान भी ना हो, आप समवेयर इन द मिडल रहें, चिंतन रहे आपकी लाइफ में, कि जो शायद मेरा भी एक मोटिव है कि आप एक थॉट प्रोवोकिंग स्टेट में रहें, बट यू नेवर गो टू एन एक्सट्रीम स्टेट विच ऑल्टर योर माइंड। ये मेरा एक बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस रहा था। सो जब मुझे पता चला और लोगों ने मुझे बताया, तो धीरे धीरे आई ऑल्सो इवॉल्व्ड एज अ पर्सन, एज अ स्टोरी टेलर, कि जो मैं कह रहा हूँ वो लोग समझ रहे हैं, सहज कर रहे हैं, एंड उससे मेरी शायद एक जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। सो जस्ट लाइक यू सेड, लाइक मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मैंने भी अपने दादाजी को खोया। आई रोट माई फर्स्ट स्टोरी, और वो उनके लिए ही था, क्योंकि आज जो भी मैं कर रही हूँ, वो जो मेरे अंदर है ना कविता और कहानी लिखने का ये गुण, वो उनसे ही आया था। तो इवन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, और फिर मैंने भी जब लोगों को सुनाया तो उनके दिल तक पहुंचा, एंड देन आई वाज लाइक नहीं, मुझे और लिखना है और लिखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानियाँ भले ही हम लोगों को सुनाते हैं और खुद लिखते हैं, बट वो कहानियाँ हमसे होकर गुजरती है, और जब वो रिकॉर्डेड चीज़ हम बाद में आकर सुनते हैं शांति से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो हमारी ही है कहानी। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानी है जो हमारी जीवन से जुड़ी नहीं होती है, लेकिन हम
बहुत सारे टॉपिक्स पर टच करते हैं. बीइंग अ स्टोरी टेलर वी टच आई थिंक अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, लेकिन जब हम वापस आकर उसे सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसमें खुद को ढूंढ ही लेते हैं. One second. नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली वेरी वेल समराइज कि कहानियाँ हमसे होकर गुजरती हैं, हमारी ही कहानियाँ हैं, हम ही कहानियाँ हैं. मैं कहूँगा कि हम में हैं स्टोरीज, हम ही कहानियाँ हैं. अगर आप कभी भी किसी से बात करो, when people say कि पर्सनालिटी क्या है क्या नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द स्टोरीज, Correct. राइट. चाहे ऑफिस की बातें हों, चाहे वो कहीं की गॉसिप हो, चाहे रिश्तेदारों की बातें हों, कुछ भी हो, हाँ. बट दिस ऑल स्टोरीज. लाइक हमको वाणी दी हुई है, उससे हम जो बोल रहे हैं, जो चीज़ शेयर कर रहे हैं, वो कहानियाँ ही है. कहानियाँ ही है. ठीक है. तो हमसे ही निकल रही हैं, हमसे होकर गुजरती हैं. जब आप दोबारा अपनी रिकॉर्डिंग सुनते हैं, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं थोड़ा लो मूड में होता हूँ तो कोई मतलब ऑटोमेटिकली जो है वो लाइन पे स्पॉटिफाई पे या कहीं पे एकदम से पॉडकास्ट प्लग्ड इन हो जाता है और एकदम से ईयरफोन में अपनी आवाज़ सुनाई देती है. तो वो सिर्फ वो कहानी नहीं सुनता मैं, मुझे उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें समझ आती हैं कि अरे यार मैं कहाँ था, कहाँ से कहाँ आ गया. वो व्यक्ति जो बोल नहीं पाता था 2 लोगों के सामने, आज सडनली 2 लोगों के सामने बैठकर लोग उसकी बारे में चीज़ें जानना चाह रहे हैं, राइट. तो वो पूरा एक नॉस्टैल्जिया हिट होता है आपको, पूरी की पूरी जर्नी आपको अपने सामने दिखती है कि यार, और फिर आपको वो कहानी का प्लॉट और वो समझ आता है कि अच्छा यार ये तो अंदर की कहानी थी जो बाहर है. तो होता है, कई बार होता है. आई एम श्योर ये कई क्रिएटर्स के साथ होता होगा, जब वो अपनी क्रिएशन खुद देखते होंगे सामने एज अ थर्ड पर्सन, तो उन्हें वो हिट करता ही हो. So, coming back, stories are the creation. So, I'm just thinking of for all the aspiring or waiting for their perfect divine time to write a story. They are waiting for that eureka moment somewhere to pen down that perfect lines. So, what do you want to tell me? So I want to tell them there is no perfect time or eureka moment. I think the moment जिसमें आप डिसाइड करते हैं कि ये करना है, वही अपने आप यूरेका मोमेंट या परफेक्ट टाइम हो जाता है. कुछ ऐसा नहीं है यार, मतलब आप तारे अलाइन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है. अपने आप को एक इंसान की तरह देखिए और अपनी चीज़ों को उस लेंस से देखिए कि यार मेरे पास लिमिटेड टाइम है, ठीक है. अगर मैंने आज कुछ लिखा तो मैं क्यों सोच रहा हूँ कि मैं 3 दिन बाद डालूंगा. आज डाल के देखो क्या होगा. ताली नहीं बजेगी, ठीक है, नहीं बजेगी. कौन सी गारंटी थी कि एक शुभ मुहूर्त पे ताली बजनी थी. अगर आप किसी से पूछ के आते कि साहब इस दिन करिए, कोई गारंटी नहीं है. ताली जब बजनी होती है वो बज जाती है, कई बार नहीं बजती, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बजती है. एंड यू हैव टू, अगर आप इस हसल में घुसना चाहते हैं कि आप अपने आर्ट को बाहर निकालना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आपको वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी इन अ पैकेज. इट कम्स इन अ पैकेज, इट्स लाइक अ वन पैकेज, ठीक है. कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स मुझे कोई शाबाशी नहीं देगा, आई हैव टू पैट माई ओन बैक. एंड इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम तो लेट ही होगा और कुछ नहीं होगा. आप आज निकालिए. मैंने कुछ दिन पहले एक बड़ी अच्छी कोटेशन पढ़ी थी, मेक इट एग्जिस्ट फर्स्ट, यू कैन मेक इट बेटर लेटर. करेक्ट. पहले बनाइए, उसको सामने लेके तो आइए, उसके बाद उसको बेहतर बनाइए. अब मैं क्योंकि मैनेजमेंट कंसल्टिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो जब मैं कहानियाँ लिख रहा था तो मैंने इसको थोड़ा अलग तरह से देखा था. मैं कह रहा था कि यार एक MVP बनाते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, राइट. लेट्स स्टार्ट विद दैट. 2 कहानियाँ निकालो तो सही, दो रिकॉर्डिंग्स करो तो सही. जितना आता है उतना करो. एडिटिंग नहीं आती कोई बात नहीं, अगर फैंसी चीज़ें नहीं आती, जितना आता है उतना करो. चालू तो करो भाई. आप यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. So starting with the milestone by this, so these milestone one first, they can have a beta one. I mean, हाँ या स्पोकन लाइक अ प्रॉपर सॉफ्टवेयर डेवलपर, राइट. बीटा अल्फा बीटा वही तो है ना. अभी अगर आप किसी भी कहानी को उठा लो यार, वो एक पहले दिन में थोड़ी ना बन गया था. बिल्कुल बिल्कुल. आज़ादी भी भारत को कितने संघर्ष के बाद मिली थी और कितने लोग लगे थे. तो कहीं भी आप अपने आसपास देखोगे तो इट टेक्स टाइम, बट समबडी हैज़ टू स्टार्ट. ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी के आने से पहले किसी ने कभी ये नहीं सोचा था कि भारत को आज़ादी नहीं चाहिए, राइट. चाहिए थी तो जद्दोजहद चालू थी. कोई आया बीच में जर्नी में, आपको साथ दिया, तो वो एक रिजल्ट आपका अलग बना. ऐसे ही आपकी भी एक जर्नी होगी कि जद्दोजहद आप चालू रखिए कि मुझे आर्ट बनाना है, फिर उस आर्ट में 2 आर्टिस्ट जुड़ जाएंगे, कम्युनिटी बढ़ जाएगी, वो आपको और प्रोत्साहन देगी, आप बहुत ज़्यादा आपका हौसला बढ़ेगा. और जब आप वो करते जाओगे, आप धीरे धीरे और आगे बढ़ते जाओगे. और किसी दिन नहीं भी बढ़े आगे तो कोई बात नहीं. जर्नी हमेशा याद रखना है कि चालू क्यों किया था मैंने चालू.
अगर मैंने चालू किया था कि मुझे लाइक्स फॉलोअर्स चाहिए थे, और अगर वो नहीं आ रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान होइए, बिकॉज वो आपका गोल था। पर डिस्क्लेमर ये है मेरी बातों का कि मैं चालू कर रहा हूँ फ्रॉम अ पैशन पर्सपेक्टिव, कि मैं जर्नी एंजॉय कर रहा हूँ। मेरे पास मैं पेट पालने के लिए एक साधन है, मैं दिल और अपनी खुशी के माध्यम से कहानियाँ लिखता हूँ और उसको उस तरह से ही रखना चाहता हूँ। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और उसके बाद आप एक पहला कदम लीजिए तो सही यार, आप लेके तो देखो। वो एक कदम आप जब तक नहीं लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब पहले वो लो फिर बाद में बात करेंगे। और हमेशा अपने दिल की सुनो और एक कदम आगे बढ़ाओ, और अगर कहीं पर भी लड़खड़ा जाओ तो घबराना नहीं है। अगर तुम्हें वो चाहत है कि नहीं मुझे ये पाना है, तो बस आगे बढ़ते रहो। देखो ये कहना बहुत अच्छा होता है स्वीटी, और बहुत हाँ। ये सारी बातें रिपीट करते हैं, घबराओ मत, ये हाँ। होगी भाई। घबराहट जो होती है। एड में आता है कि डर सबको लगता है गला सबका सूखता है, इट्स ट्रू, हाँ। बिल्कुल सच बात है। प्रॉब्लम ये है कि और ज़्यादा क्वेश्चन ये है कि आपके अंदर की आवाज़ बाहर के शोर से ज़्यादा है कि नहीं। हाँ। और वो कभी कभार नहीं होगी और कभी कभार होगी। जितने ज़्यादा बार वो आप ज़्यादा होगी, वॉल्यूम विल बी हायर देन द नॉइज आउटसाइड, यू विल मूव इन द डायरेक्शन विच योर इनर वॉइस इज आस्किंग। एंड कोई गारंटी नहीं है, जिस दिन वो वॉल्यूम हाई भी है आप बाहर जाओगे यू विल फेल। आप 10 बार जाओगे, 10 में से 8 बार फेल भी हो सकते हो और 2 बार आप सक्सीड भी हो सकते हो। तो दिल और दिमाग दोनों यूज करने हैं। स्मार्ट बंदे जो लोग जीत रहे हैं आगे लाइफ में, या सो कॉल्ड जो आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, वो दिल और दिमाग का राइट बैलेंस लेके चल रहे हैं। आप आर्टिस्ट हैं इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं दिल ही दिल लगा रहा हूँ, नहीं। तो कहीं ना कहीं आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी है। बिकॉज दिल से आपने कुछ बना दिया पर आपका दिमाग ही कह रहा है यार किसी ने तो देखा ही नहीं, वो दिल थोड़ी ना कह रहा है। करेक्ट। दिल बनाते वक्त नहीं कह रहा था कि भाई यहाँ पे तो 10,000 व्यूज चाहिए मुझे, वो दिमाग कह रहा है कि यार 2 दिन हो गए वीडियो डाले हुए, कोई व्यूज ही नहीं आए। तो इट्स अ बैलेंस ऑफ बोथ। यू आर वन पर्सन ना, यू आर नॉट 2 डिफरेंट पीपल। आप स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर थोड़ी ना आप। करेक्ट। आप आर्टिस्ट हैं, आपका दिमाग आपको कभी अच्छी डायरेक्शन में भी दौड़ाएगा, कभी पीछे भी खींचेगा। ये सारा खेल उस पेशेंस और उस कंट्रोल का है। जिसने उस पर मास्टरी कर ली कि भाई थोड़ी सी डील मैंने दिल को दी तो थोड़ा मैंने लगाम रखी दिमाग से, एंड वाइस वर्सा। करेक्ट। तो आगे लंबी रेस का घोड़ा वही है जो ये बैलेंस बिठा है। जो ये अक्सर ये लोग कहते हैं कि हाँ दिल की सुनो कई बार दिल आपको पीछे भी खींच लेता है। गेट अ बैलेंस ऑफ बोथ। यू कैन यूज योर माइंड इन द प्लेसेस वेयर योर हार्ट स्ट्रगल्स, एंड वाइस वर्सा। दिल कह रहा है कि भाई कूद जाए यहाँ से, तो दिमाग ही तो रोकता है ना, नहीं भाई मर जाएगा। करेक्ट। A smart person knows how to use both of them in the right manner, and a good artist also knows how to use both of them in the right manner. When to use what? Yes. So talking about podcast, so from going and performing at open mics, from pen and paper to the recorder, when did you think that podcasting of this? And that time when you were talking, podcasting was not much spoken about, right? Very rarely people were using external mics. So I've been listening to audio stories as a kid. I always loved them. Like I was a very avid radio listener. मुझे अच्छा लगता था गाने वाने से सुनने ज़्यादा मुझे रेडियो अच्छा लगता था. And I like this process of creating a theater of the mind. तो कि मैं मतलब मैं कुछ ऐसा बोलूँ या कुछ ऐसा इवन विदाउट अगर साउंड इफेक्ट्स भी नहीं है, बस सिर्फ मेरी आवाज़ से, मेरे शब्दों से किसी की अगर इमेजिनेशन ट्रिगर हो रही है, मेरी ही इमेजिनेशन ट्रिगर हो रही है, तो पर्पस सिर्फ वो था कि यार एक ऐसा मीडियम हो जिससे मैं अपनी इमेजिनेशन ट्रिगर कर सकूं. तो आई स्टार्टेड इन ओपन माइक्स, गोइंग ऑन द स्टेज, विच वाज नॉट अ पॉडकास्ट, विच वाज नथिंग, विच वाज बेसिकली इन एन ऑडियंस फ्रॉम 40-50 फोक्स से लेकर 200-400 लोग, जैसे जैसे वो स्केल हुआ. तो कोशिश ये थी कि यार बस मैं जो लिख रहा हूँ उसमें मेरी इमेजिनेशन ट्रिगर हो, उससे मैं कुछ अच्छा लिखूँ, सामने वाले को भी लगे कि हाँ यार कुछ थॉट प्रोवोकिंग चीज़ बोली गई है. पॉडकास्टिंग एक मीडियम ऐसा मुझे मिला, मुझे जब कोविड के जस्ट पहले किसी ने इंट्रोड्यूस कराया इसके बारे में, तो मुझे लगा हाँ ठीक है कर लेते हैं. नॉट दैट आई वाज कैमरा शाय और एनीथिंग, पर मुझे लगा कि ये फटाफट हो सकता है. अब ये आज स्टूडियो सेटिंग है बिकॉज हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं, पर मैं एक सिंगल माइक सेटअप के साथ घर में अपने छोटी सी टेबल पे रिकॉर्ड करता हूँ. तो इट वाज क्विक, it was under my control, under my budget. It was very much on that front, right? कि मैं बस
मैंने कहा ना पहला कदम ले सकता हूँ मैं, पहला कदम ले सकता हूँ। और मुझे फिर मज़ा आ रहा है कि जिस तरह से मैं ऑडियो कहानी इमेजिन कर रहा हूँ, सामने वाले के दिमाग में भी वो जा रहा है। सो देन आई गॉट हुक्ड ऑन टू द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग अ थिएटर ऑफ द माइंड, कि बिना किसी को कुछ विजुअली दिखाए मैं अपने शब्दों से उनको उस डायरेक्शन में कैसे ले जा सकता हूँ और वो कहानी कैसे दिखा सकता हूँ। तो वो एज अ क्रिएटर, एज अ चैलेंज मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें फिर जो मैं अपने शब्दों का चयन कर रहा था, वो कैबलरी डाल रहा था, फ्रेजेस डाल रहा था, मेटाफर्स डाल रहा था, बहुत सोच समझ के डाल रहा था। देयर वाज अ लॉट ऑफ थॉट एंड आई लव्ड इट। आई वुड रीड अ लॉट ऑफ हिंदी कंटेंट, ओल्ड स्कूल लिटरेचर, क्योंकि कहीं से आपको एक बड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बड़े 2 शब्दों में कहने का आपको एक इंस्पिरेशन मिल रहा था। एंड आई रियली एन्जॉयड दैट पार्ट। तो देन आई स्टार्टेड विद दैट एंड आई वाज लाइक, हाँ, ये मुझे बहुत क्रिएटिवली सेटिस्फाइंग लग रहा है कि वही बात जो 4 शब्दों में आप कह रहे हो, वो शायद किसी एक शब्द में या बस एक हल्की सी एक आवाज़ आपने कुछ निकाली एंड दैट थिंग इज़ कन्वेड। एंड द आर्ट ऑफ stitching everything together in such a package where without showing anything to you, I am taking you on a journey, that just excited me and I was like, yeah, let's continue. No, they tried the exacting games to people say. हाँ, मतलब बहुत लिसनर्स ने मेरे को बताया है कि जब भी वो मेरी कोई कहानी सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो उन्हीं की कहानी है, क्योंकि वो उस पर वो थॉट दिया मैंने कि मैं सिर्फ आई डोंट वांट टू जस्ट रैम्बल अबाउट कि मैं क्या सोच रहा हूँ, राइट? मतलब मैं वो बड़ा ही स्वार्थी तरीका है। इट्स अ वेरी सेल्फिश वे ऑफ राइटिंग एनीथिंग और प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, मुझे क्या पसंद है। दूसरा ये भी है कि आपको क्या पसंद है, ये लिखना भी एक आर्टिस्ट के लिए, क्रिएटर के लिए बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि फिर मैं तो फिर आपके इशारे पे ही नाचता रहूँगा। तो समवेयर इन द मिडल आई मेट, आई एम लाइक, हाँ, मुझे एक कहानी कहनी है, लेकिन क्या क्लिंटन और स्वीटी उससे रिलेट कर पाएंगे? तो मैं उनमें उस कहानी में क्या एलिमेंट्स डाल दूँ जिससे वो भी रिलेट कर पाए। तो समवेयर इन द मिडल आई मेट, जहाँ पे मेरा एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन भी था, मेरे लिसनर्स को अच्छा भी लगा सुनने में, तो और मुझे भी ऐसा लगा कि हाँ, आई कैन कीप पुशिंग द बाउंड्री ऑफ इट विद गुड वोकैबुलरी और एडिंग साउंड इफेक्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट। पर साउंड इफेक्ट्स या म्यूज़िक या उन सबसे ज़्यादा मेरा फोकस प्राइमरी लैंग्वेज पे रहा है कि हिंदी के मैंने कहा जैसे व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आई कैन ऐड, जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं एक ऐसी पोजीशन में हूँ जहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सो मच जितना मैंने अभी बोल सकता हूँ कि मतलब एक किंक कर्तव्य विमूढ़ दुविधा में फंस गया, राइट? अब ये शब्द इटसेल्फ जो है नहीं कोई डेली बेसिस पे नहीं बोलता, पर मुझे बहुत मज़ा आता है उस शब्द को इस आज की मॉडर्न स्पोकन हिंदी में डालना एंड टेक पीपल ऑल्सो ऑन दैट राइड, अरे ये क्या शब्द बोला, right? And then people associate that with the emotion. So I love that part. I love creating that theater of the mind. नहीं, I think वो तो नहीं, पर वो मुझे बहुत वो act I really like that it's to not keep it very simple. Like I like that process. Don't spoon feed people basically, right? Like तो कि मैं अपने आप को spoon feed कराना नहीं चाहता, तो जैसे हम before the event I was talking about, right? Like you need to know that your audience is also smart and intelligent enough. Give them good food, give them good things to see, give them good stories and good words to hear. Let them figure out what kink kartavya mode means and let them go into the journey of it. Now, why are you spoon feeding ke itte simple sa hai? So I like that challenge, and that's why podcasting and audio podcasting stuck with me. तो ठीक है, कर लेते हैं। तो इस पॉडकास्टिंग इंडस्ट्री में लाइक सबके सक्सेस के डेफिनेशन अलग अलग होते हैं, तो आपके लिए क्या है सक्सेस का? यार यही है, आई थिंक हैविंग द एबिलिटी टू मीट people like yourself who are also creators, that adds a lot of flavor to my life. वरना लाइफ में बहुत जल्दी मुझे समझ आ गया था कि कस के जूता, कस के बेल्ट, ठोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी, मोस्टली यही है लाइफ, ठीक है? पर उसमें हम थोड़ा थोड़ा फ्लेवर कैसे स्प्रिंकल कर सकते हो। तो मैं ये कहता हूँ कि कहानियों के ज़रिए मैं बहुत अलग लोगों से मिला हूँ, अलग उनके स्ट्रगल्स रहे हैं जिन्होंने मुझे बहुत हम्बल किया है, जिन्होंने मुझे सिखाया है कि भाई मेरी ज़िंदगी में तो शायद मैं सब ठीक ही चल रहा है, जितना मैं अपने आप को कोसता रहता हूँ कि शायद ये है वो है, कि लोग न जाने कितने कठिनाइयों से गुजर के भी अगले दिन मुस्कुरा के ऑफिस आ रहे हैं, कि काम कर रहे हैं, कि चल रहे हैं, राइट? तो
वो जो एक नज़रिया मिला है मुझे ऐसा लगता है कि वो फॉरएवर मेरे साथ रहेगा लाइफ में, और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर इट कि मैं वो एक एक बस एक छोटा सा लाइन ऑफ योर ओन डेन नहीं रहा, जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि बस आपको उतना ही पता है कि भाई जितना आप हाँ। उसमें है। तो मुझे बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ देखने का मौका मिला, पास से दूर से लोगों की ज़िंदगी का पार्ट होने का मौका मिला। अब किसी ने मैसेज किया तो कहीं ना कहीं शायद मैं भी उनकी ज़िंदगी का पार्ट बना। हम साल भर बाद मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो मैंने शायद कहा होगा जो आप दोनों को आपके दिमाग में कहीं रह गया होगा कि यार चलो इसको बुलाते हैं, इससे बात करते हैं। तो ये इस टाइप की जो एक सेटिस्फैक्शन है ये बहुत अलग है। ये मुझे एज अ ह्यूमन प्रोग्रेस करने में बहुत मदद करती है, एंड मेक्स मी स्टे हम्बल, मेक्स मी स्टे रूटेड कि हाँ यार ये इकट्ठा करो, लोगों का प्यार इकट्ठा करो, लोगों की दी हुई इज्जत, लोगों की दी हुई उनका वक्त, उनका मान सम्मान, ये इकट्ठा करो। पैसे तो लोग 60-70 साल की उम्र में भी कमा ही लेते हैं मरने से पहले, पर बहुत वक्त लगता है, बहुत मेहनत लगती है कि और बहुत सामने वालों का प्रेम जो है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट। तो आई चेरिश दैट पार्ट यार। मेरे लिए तो वही बढ़िया है, मतलब मैं उसी में खुश हूँ। सुबह उठा और अगर किसी ने मैसेज किया कि साहब आपकी कहानी सुन के अच्छा लगा, उसी में हम इट वॉज लवली, लाइक बहुत ही अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट हाँ, हम मिलते ज़रूर है एक पल के लिए, पर कब वो कहानी बन जाए हमें पता नहीं चलता। और जब हम उस किताब के पन्ने को दोबारा पलटते हैं और जो पढ़ के जो सुकून मिलता है, लाइक दैट्स व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउ आई गेस। हाँ बिल्कुल। और मतलब बहुत कहाँ से कैसे कड़ियाँ जुड़ती हैं आपको पता नहीं है, करेक्ट। लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहिए, आप अपने आप से सच बोलते रहिए। हाँ इस प्रोसेस में मैंने ये भी सीखा है कि यार अपने आप से सच बोलो, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप 4 मुकाम हासिल कर लोगे, पर बहुत लोग ऐसे भी मिला ना, मैंने कहा ना वैरायटी लोगों से मिला, मैं बहुत लोगों से मिला जो मुकाम हासिल कर लिए फिर भी परेशान है। कई लोग नहीं हासिल किए। मैं मुकाम की डेफिनेशन भी, हाँ। क्योंकि सक्सेस का जिक्र किया आपने, तो मुकाम और सक्सेस की डेफिनेशन भी कौन बना रहा है ना, वो हम ही तो बना रहे हैं। तो अगर देयर इज़ नेवर एन अपर लिमिट टू एनीथिंग। मेरे पास आज छोटी गाड़ी है, मुझे कल बड़ी चाहिए, बड़ी है तो और बड़ी चाहिए, महंगी चाहिए, बड़ा घर चाहिए। और मैंने लोगों को देखा है कहानियों के ज़रिए, ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, कि लोग कम से कम में भी जो उनके चेहरे पे खुशी है ना, खुशी पैसे से नहीं आ रही है। तो गरीब आदमी भी हंस रहा है, तुम देखोगे कभी एक सिग्नल पे भी खड़े होकर देखोगे तो वो भी हंस रहा है ना। अगर पैसे से ही सब कुछ होता तो उसको हंसना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर वो हंस रहा है। दैट मीन्स देर आर थिंग्स बियॉन्ड मनी, देर आर थिंग्स बियॉन्ड आवर कॉम्प्रीहेंशन दैट वी शुड लुक फॉर, एंड इफ़ यू आर एबल टू प्रोग्रेस इन दैट डायरेक्शन, अगर आप उस डायरेक्शन में बढ़ते जा रहे हैं जहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि यार हंसने खेलने जीने के लिए सिर्फ मुझे मेरे दिमागी संतुलन को सही रखने की ज़रूरत है, तो फिर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए। वरना तो बहुत लोग हैं जो मुकाम हासिल कर लिए लेकिन फिर सुसाइड कर लेते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो उनको नहीं पच पा रहा। तो सच बोलो अपने आप से, पूछते रहो अपने आप से वक्त बेवक्त। आई थिंक कहीं ना कहीं क्योंकि मैं नौकरी के साथ या अपना पैशन फॉलो करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी अपने आप को चने के झाड़ पर चढ़ा ही नहीं पाता। जैसी कोशिश भी करता हूँ ना, तो अगले दिन बॉस का ईमेल आ जाता है, भाई ये काम बाकी है तो कर लो। तो मुझे लगता है कि इस पर रोने की बजाय मैंने इसको अपने लिए, अपने आपदा को अवसर में यूज़ कर लिया कि इट इज़ हेल्पिंग मी स्टेइंग ग्राउंडेड, एंड दैट्स इम्पॉर्टेंट। स्टेइंग ग्राउंडेड, स्टेइंग हम्बल इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन जनरल इन लाइफ, या चाहे वो क्रिएटर जर्नी हो या कुछ भी हो। So it was a lovely conversation with you, Abhay. Like we really enjoyed this conversation और आपने बहुत ही खूबसूरती से हमारे कैनवस को आज पेंट किया है। और जो लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, लाइक आई होप आपको ये बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और आप भी जाओ अपनी कुछ पुरानी लम्हे को याद करो, जो मन में आए वो लिख डालो, क्या पता आपकी कहानियाँ कितने दिल तक पहुँचे। Go find the extraordinary in the ordinary. Very well said. Very well said. So until next time, you're not going to sign off. We'll all stay sanguine in your hearts, and Abhay also through his podcast Lal Chashma. Today about banning that. I should carry that. But Yeah. thank you guys. बहुत अच्छा लगा बात करके, and thank you to your listeners as well. And go and click that bell icon for continuous updates and And do like our episode. Thank you so much.